Good afternoon, one and all. Today is 19th May 2021, and we'll be taking second chapter on anatomy of Linux operating system. How do you log in and log out from the Linux operating system? To log in onto the Linux operating system, we have to boot the operating system. Linux operating system को boot करना पड़ेगा. Then you have to type the user ID and then supply the password, and it will allow you to log in into the. It will allow you to enter into the Linux operating system. Okay, we have already seen how do you log in the last session. Last class में मैंने आपको Linux operating system on virtual machine we have done that. Okay, when you log in you will be prompted with, you will be getting a prompt as dollar. आपको dollar prompt दिखाई देगा, और अगर आप super user से login करोगे तो it displays the hash prompt. आपको क्या दिखाई देगा? hash prompt दिखाई देगा अगर आप super user से login करोगे. Super user means administrator. And if you would like to terminate, go out of the Linux system, terminate the Linux system, shut down the Linux system, you have to type either logout or exit. So this will shut down the operating system. Login करने के लिए सिंपल तरीका है user ID और पासवर्ड सप्लाई करना. वर्चुअल मशीन को शुरू करेंगे, उस पे Linux operating system स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में we will enter into the Linux operating system. After you finish the after you log in, you will be getting a prompt called as dollar अगर आप normal user से login करते हैं, और अगर आप super user administrator से login करोगे तो you will be getting hash prompt. आपको hash prompt दिखाई देगा. ठीक है, मैं जब Linux operating system का मशीन शुरू करके प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब आप उसको देखकर समझ लो. Now next thing is I have given you the emulator Termux करके. On that Termux emulator you have to execute the commands. So those who have not installed the Terminator should install the Terminator. Okay. We can also use Control plus D and Control Z to log out from the operating system. Small case log out, log off, exit. Okay. You can press any key to reboot and save to power off the operating system. Now let's talk about the structure and anatomy of the Linux operating system. Linux operating system का structure क्या है? उसमें तीन main part है. एक रहता है kernel, one is kernel, second is shell, and the third is tools and application. So this is the architecture of Linux operating system. इस architecture को अच्छे से याद कर लो, ये बहुत important है. Architecture में क्या क्या है? Architecture consists of three basic things. First is kernel, shell, and tools and applications. Okay. Now let's see. This is hardware. Then we have CPU, RAM, I/O devices, shell, tools and applications. Okay. Tools and applications. Here you have utilities. Then the general operating system text editor, file manager, compiler. Okay. So this is the architecture, multi-user Linux, layers of multi-user Linux operating system. यहाँ पर आपके पास में at the center there is a hardware, and above that there is a CPU, kernel. यहाँ पर kernel है basically, ये जो part है. Center पे आपका hardware है, यहाँ पर आपका kernel part है. Kernel is the core of the Linux operating system. Kernel resides at the center of the operating system. There is one more diagram that I will show you where the kernel is being depicted. Okay. Here you can write kernel. यहाँ पर आप kernel लिख सकते हो. Here you can write kernel. Okay. So the diagram is like this. Architecture of Linux operating system. Core, center पे hardware, kernel. Hardware consists of CPU. Hardware में क्या क्या है? CPU, we have RAM,
IO, and above that we have something called as kernel. Outside that is the shell, then applications, tools and applications, utility, general system, text processors, file management, programs, compilers, और सब बाहर में क्या है, users है. ठीक है. Now let's talk about the kernel. What do you mean by the kernel? Kernel is the core of the operating system and plays a major role to schedule the task and to manage the task. सबसे मेन जो काम रहता है कर्नल का, क्या काम है? कर्नल का काम है मैनेजमेंट का काम. कर्नल जो है वो सेंटर में रिसाइड हो रहा है, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है कर्नल. कर्नल का मेन काम क्या है? कर्नल इज टू शेड्यूल द टास्क एंड मैनेज द डेटा स्टोरेज. क्या काम करता है कर्नल? कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल कोर है और उसका मेजर रोल क्या है? शेड्यूलिंग, टास्क शेड्यूलिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने टास्क शेड्यूलिंग देखा था. टास्क शेड्यूलिंग मीन्स कोई भी काम को कब कैसे करना है, दैट इज शेड्यूलिंग. हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि हमको कल किस तरह से रूटीन फॉलो करना है. मॉर्निंग वील गेट अप एट दिस टाइम एंड आफ्टर दैट वील गो देयर, कंप्लीट दैट वर्क, कम बैक बाय दिस टाइम. दैट इज शेड्यूलिंग. So similarly, the kernel is basically responsible for scheduling of the task. जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क रहते हैं वो कर्नल परफॉर्म करता है. और दूसरा काम क्या करता है? इट मैनेजेस द डेटा स्टोरेज. स्टोरेज, डेटा का जो स्टोरेज है उसको मैनेज करके रखता है. मतलब किस तरह से डेटा स्टोर होना चाहिए, किस वे पे स्टोर होना चाहिए. ओके. ये जो है डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करता है. कर्नल किसके साथ में बातचीत करता है? हार्डवेयर के साथ में. हार्डवेयर में क्या क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग आता है, रैम आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आता है. ओके. और बहुत सारे ये टास्क शेड्यूलिंग करता है, टास्क को शेड्यूल करता है. इट आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटिंग. क्या काम करता है? टास्क जो रन हो रहे हैं उनको रनिंग के लिए, एग्जीक्यूट टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये हेल्पफुल है. कौन? कर्नल. कर्नल इज हेल्पफुल इन एग्जीक्यूटिंग द टास्क. प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्नल इस्तेमाल होता है. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? दिस इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी सीन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट. नाउ वी आर learning the specific operating system, that is Linux operating system. तो Linux operating system में कर्नल पढ़ रहे हैं. कर्नल का मेजर रोल क्या है? कर्नल जो होता है वो कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है. कर्नल जो है वो टास्क शेड्यूलिंग के काम आता है, डेटा स्टोरेज करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है, प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन के लिए हेल्पफुल है. Then allot processor time to each and also decide when one program stops and another program starts. मतलब प्रोसेसर को टाइम देता है और बताता है कि कब एक प्रोग्राम को रुकना है और कब एक प्रोग्राम को स्टार्ट करना है. So this is being done by the kernel of the operating system. For example, suppose अगर हमने if you type the ls command मैंने आपको एक बार फर्स्ट सेशन में बताया था. ls is the command which is used to list the डायरेक्टरी कंटेंट्स, दैट इज फाइल्स और डायरेक्टरीज लिस्ट आउट करने के लिए ls कमांड यूज करते हैं. थ्रू द शेल इट्स कर्नल हु डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू रीड द नेम्स ऑफ द फाइल्स फ्रॉम द डिस्क एंड रिटर्न देम टू द यूजर अगेन टू द शेल. मतलब यहाँ पे हमारा जो कर्नल है, ये कर्नल क्या करता है? ये शेल है. शेल कौन सा आ गया? हमारा डॉलर प्रॉम्प्ट. जैसे जब भी हम लॉगिन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द डॉलर प्रॉम्प्ट. जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में ये डॉलर प्रॉम्प्ट आ गया. ये अभी हमने लॉगिन किया था, यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो हमारे पास में लॉगिन आ गया. यहाँ लॉगिन के ऊपर हमने ls कमांड टाइप किया. जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया तो मुझे इसके अंदर कंटेंट्स दिखाई देंगे. क्या दिखाई देंगे? डायरेक्टरी कंटेंट्स. डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो सब दिखाई देगी ls कमांड से. तो जैसे ही मैंने ls कमांड टाइप किया तो मुझे ये चीजें दिखाई देगी. अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है? इसको कहते हैं शेल. हम जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो वी स्विच टू अ शेल. हम किसमें स्विच ओवर हो जाते हैं? हम शेल में स्विच हो जाते हैं. तो शेल क्या करता है? शेल कमांड को इंटरप्रेट करता है. शेल इज कॉल्ड एज कमांड इंटरप्रेटर. और फिर वो कमांड को किसके पास भेजता है? कर्नल के पास में. कर्नल जो है वो क्या करता है? कर्नल उस कमांड को
कर्नल हु डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू रीड द नेम ऑफ द फाइल। कर्नल क्या कर रहा है, डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, और फाइल के नाम को रीड करता है डिस्क में, और उससे जो नाम रीड करता है वो शेल को दे देता है, और शेल वो जो नाम मिलते हैं उसको कंटेंट मिलता है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। कर्नल जो है वो हार्डवेयर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एंड it performs several machine dependent functions and therefore some portion of this programs have to be different for different machines on the multi user environment। तो कर्नल क्या करता है, कर्नल बेसिकली कोड के साथ में हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है। अब देखो यहाँ फंक्शंस लिखे हुए हैं कर्नल के बेसिक फंक्शंस क्या है। कर्नल is it accepts the request from the user through the shell and interacts with the hardware to carry out the task। कर्नल जो है शेल से रिक्वेस्ट लेता है, जैसे अभी हमने ls कमांड बताई थी, तो ls कमांड जो है वो शेल कर्नल को देगा, कर्नल रिसीव करेगा, उसके बाद में ये डायरेक्ट करेगा हार्डवेयर को, अगर उसको हार्डवेयर से कुछ चीज चाहिए या हार्डवेयर को कुछ देना है, उसको परफॉर्म करना है, तो वो काम परफॉर्म करेगा। दूसरा टास्क है मैनेजमेंट का, डेटा स्टोरेज का, तो वो फाइल को मैनेज करता है और सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कर्नल। तीसरा काम क्या करता है, इट कैरी आउट ऑल डेटा ट्रांसफर बिटवीन फाइल्स एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और फाइल सिस्टम के बीच में जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो ये काम करता है। चौथा काम क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करके रखता है। फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, डेटा स्टोरेज, ये सब इसका काम है। तीसरा काम, नेक्स्ट काम क्या करता है, इट हैंडल्स द इंटरप्ट्स एंड एरर रूटीन। इंटरप्ट्स क्या होता है, इंटरप्ट्स आर द programs which halts the normal execution of the task and switches over to the other task and come back। मतलब जो नॉर्मल रूटीन चल रही है उसको रोकता है। इंटरप्ट मतलब रुकना, थोड़ी देर इंटरप्शन आता है टीवी में कभी कभी, मतलब आपका सिग्नल चला जाता है तो इंटरप्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट। तो इंटरप्ट्स हैंडल करता है कौन, कर्नल। और एरर रूटीन पे जाता है, मतलब अगर कुछ एरर आ गया, कुछ मैसेज आ गया, तो वो कौन मैसेज डालता है एरर का कि कमांड गलत है या कुछ है, तो वो मैसेजेस जो है वो कर्नल फाइंड आउट करता है कि हार्डवेयर ही फाउंड नहीं है। आपने प्रिंट कमांड देने की कोशिश की लाइनेक्स से, आप प्रिंट कमांड दे रहे हो पर प्रिंटर ही अटैच नहीं है, तो ये क्या करेगा, शेल जो है वो कमांड को इंटरप्रेट करेगा और उसको कर्नल को देगा। कर्नल क्या करेगा, कर्नल देखेगा मेरे पास तो हार्डवेयर ही नहीं है, प्रिंटर तो है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट कहाँ करूँ प्रिंटर को कमांड, तो एरर रूटीन फॉलो होगा, एरर आएगा, मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, वो वापस रिटर्न करेगा शेल के पास में और बताएगा मेरे पास तो हार्डवेयर नहीं है, तो शेल जो है वो मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से कर्नल हैंडल करता है। ये मेंटेन करता है डेट टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो सारा मैनेजमेंट का काम जो है वो कर्नल करता है। कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही कोर पार्ट है। इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द मैनेजमेंट टास्क। कौन कौन से मैनेजमेंट टास्क करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, डेट टाइम मैनेजमेंट करता है, डेटा स्टोरेज करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज करता है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है सब्जेक्ट तो वहाँ पर सारे मैनेजमेंट रहते हैं, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, पेरिफेरल मैनेजमेंट। ओके, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर इस स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब टास्क मैनेजमेंट के कौन कर रहा है, कर्नल करता है। The second component of the operating system जो है that is called as shell। shell is the next component। तो shell क्या काम करता है, shell is called as a command interpreter। ये words नए हैं आपको operating system में, पर ये words Linux से related है। shell is called as a command interpreter। it executes the commands। commands को execution करने के लिए shell को इस्तेमाल किया जाता है। shell जो है command को interpretate करता है। जो भी कमांड्स हम देते हैं, जैसे हमने ls कमांड दी तो ls कमांड दी, ls कमांड जो है वो शेल समझेगा उसका मीनिंग कहाँ पर है, क्या अवेलेबल है, उसको इंटरप्रेट करेगा। अगर उसको हार्डवेयर को सेंड करना है तो हार्डवेयर को सेंड करेगा और उसके बाद में वो उसको एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे देगा। तो शेल जो है वो ऐसा है जो यूजर के साथ में और कर्नल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। इट इज द इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कर्नल। इसके बीच का ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो बीच में काम करता है, बीच का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेस। दोनों के बीच में है। सो शेल इज कॉल्ड एज अ कमांड इंटरप्रेटर। इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द कमांड्स। कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए शेल को यूज किया जाता है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द आर्किटेक्चर इज टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टूल एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जिस
ऐप जो हम अगर मोबाइल पे बात करते हैं तो ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टूल्स, कौन कौन से टूल्स रहते हैं अलग अलग, जैसे कंपाइलर है, कंपाइलर C++ का कंपाइलर है, सी का कंपाइलर है, देन वी हैव जावा कंपाइलर, देन वी हैव कंपाइलर फॉर .NET टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्या है, कंपाइलर्स है। कंपाइलर्स क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये टूल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये जो है इसके थ्रू हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ये प्रोग्राम जो है शेल के पास जाता है, शेल इंटरैक्ट करता है, शेल उसको एक्सिक्यूट करता है, कमांड सर्च करता है, रीडायरेक्ट करता है, जरूरत रही तो कर्नल के साथ में कम्युनिकेट करता है, रिजल्ट बैक टू गिवन टू शेल एंड शेल एक्सिक्यूट्स द कमांड। तो जो हमारा फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, टेक्स्ट प्रोसेसर्स हैं, देन जनरल सिस्टम है, टेक्स्ट प्रोसेसर्स जैसे हो गए हमारे पास नोटपैड, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस पैक, किंग्स ऑफिस, ये सब जो पैकेजेस हैं ये टेक्स्ट प्रोसेसर्स हैं, जहां पर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं नोटपैड के अंदर। एडिट पैड, एडिट प्लस, इनमें हम क्रिएट करते हैं। यूटिलिटीज हो गई हमारे पास, एंटीवायरस यूटिलिटीज होगी, फिर कंप्रेशन यूटिलिटीज हो गई, डेटा कंप्रेस कर रहे हैं, अनकंप्रेस कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, हिडन कर रहे हैं। तो ये सब यूटिलिटीज जो है ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और टूल्स के अंदर आते हैं। यूजर जो है, मैं या आप, जो काम करने वाला पर्सन है वो यूजर कहलाता है। यूजर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल करता है। उसमें कंपाइलर आ सकता है, उसमें कोई कंप्रेशन यूटिलिटी आ सकती है, जिप यूटिलिटी, जिससे हम डेटा कंप्रेस करते हैं, उसके थ्रू वो काम करता है। उसके बाद में वो शेल के पास में जाता है, कमांड शेल जो है कमांड को इंटरप्रेट करता है। कर्नल के पास में अगर उसको रीडायरेक्ट करना होता है तो कर्नल पे रीडायरेक्ट करता है, रिजल्ट goes back to the shell and shell is responsible to execute the command, and on the interface you see the result. This is how the Linux architecture works. तो ये हमारा Linux architecture है। तो Linux architecture में तीन मेन चीजें हैं। What are the three things which are there in the Linux architecture? One is kernel, second is shell, and the third is tools and applications. Okay, now I am stopping the presentation. We have seen there are three components of architecture, Linux architecture. One is kernel, second is shell, third is tools and application. The fourth and the fifth component are hardware and the user. Hardware consists of central processing units, memory, then IO devices, mouse, printer, monitor, keyboard, टर्मिनल, जो भी फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टेंजिबल कंपोनेंट्स है जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। ओके, दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द Linux आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज यूजर। यूजर जो है वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में वर्क कर सको। तो यूजर कौन कौन से हो सकते हैं, एक नॉर्मल यूजर, एक सुपर यूजर हो सकता है। नॉर्मल यूजर जिससे हम लॉग इन करते हैं, BCA हो गया, BSc हो गया, यूजर हो गया। Super user is an administrator. This is the user where the privileges are all the privileges are available, and this super user gives the privileges to the normal user. Privileges मतलब rights, permissions जितनी भी होती है वो super user के पास में होती है, और वो सारे permissions जो है वो ordinary user को, normal user को देता है ताकि वो accessibility provide हो सके. So we have seen that in the Linux architecture we have basically 5 components. One is kernel, second is shell, third is tools and application software, then hardware. We have hardware at the core center, and the users who operates the Linux operating system. So 5: hardware, kernel, shell, tools and application software, and users. These are the different components of Linux operating system.